Good evening, friends, and good evening, kids. Yesterday we discussed about noun and its type. So today we will discuss about proper noun and type of nouns, and that is too in detail. तो कल हमने पढ़ा था कि noun क्या है. So noun is the name of any person, any place, or a thing, or any animal. So that is called noun. So there are 6 type of nouns. The first one is proper noun. So what is proper noun? Proper noun are the words that denotes the name of a particular place or a person or animal or a thing, and always how to identify it is a proper noun. This particular word always will start from capital letter. Means proper noun वो words हैं जो किसी एक particular person, animal, स्थान, place, थिंग यानी वस्तु को डिनोट करते हैं, और इसको पहचानने के लिए किसी भी सेंटेंस में ये जो वर्ड होते हैं ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. एग्जाम्पल, डेज नेम. डेज कैन बी एनीथिंग, बट व्हेन वी कॉल इट संडे, सो दैट इज ए प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज ए पर्टिकुलर डे. सेम वे रिवर नेम. व्हेन वी कॉल इट गंगा, so Ganga is a specific river name, a particular river name, so that is a proper noun. Person, Reena. Now we are talking about Reena, so that is particular a girl, so that is a proper noun. Then place name, that can be any city or anything. So if any place name, so we can call Delhi. Means if any city, that is noun, but when it called Delhi means that is a particular city, so that is a proper noun. So now you can distinguish what is proper noun. Means any particular name, any name which denotes the name of a particular person, animal, thing, or a place, that is called proper noun. So now second is common noun. Common noun are the words that denotes name of same kind of place, person, animal or a thing. Means common noun वो words हैं जो denote करते हैं एक ही तरह की चीजों को. एक ही तरह की चीजें, जैसे हमने बोला girls, noun है, but it is a common noun. क्यों? Because there are girls can be Reena, Seema, Tina, Monica, so it's a common noun. It denotes a name of a person, but it's a same kind of person, so it's girls. Place, city, it can be any city, so it's a common noun. It can be Delhi, Kanpur, Indore, Bhopal, or anything. City. Dogs, same kind of animal, so dogs. We are not calling any specific or any particular dog. It's a black dog, it's a German Shepherd. We are not calling that. We are simply calling dogs, so it's a common noun. Then water, it's a common noun because we have not decided what is the type of water we want. We are not saying chilled water, hot water, we are not saying that. We are simply saying water, so it's a common noun. Means common noun वो words हैं जो एक ही तरह की चीजों को denote करते हैं. एग्जाम्पल के लिए गर्ल्स. गर्ल्स कैन बी सीमा हो सकती है, रीना हो सकती है, टीना हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बट गर्ल्स, तो इट्स ए सेम काइंड, एक सेम काइंड ऑफ वर्ड. सिटी, कोई भी सिटी हो सकता है, आगरा हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, सो इट्स अ कॉमन नाउन. डॉग्स, ब्लैक डॉग हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, रेड डॉग हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, इट्स सेम काइंड, सो डॉग्स. वाटर हमने स्पेसिफाई नहीं किया, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, सो इट्स अ वाटर. इट कैन बी एनीथिंग, सो दैट इज कॉमन नाउन. सो थर्ड इज collective noun. What is collective noun? Collective noun are words that used to show a group of things, people or animals. Important thing is that used to show a group of things, people or animal.
the main key point is group. When any word denotes a group, that is called collective noun. वो words जो यूज किए जाते हैं एनिमल, प्लेस, थिंग और पीपल के ग्रुप्स को शो करने के लिए उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल, बंच ऑफ कीज, कीज का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा. हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स का जो समूह होता है उसको हर्ड बोलते हैं, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो समूह होता है उसको हम गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. और वी कैन कॉल बुके ऑफ फ्लावर्स etc. Means whenever any word denotes a group of people, animals, place or a thing, that is called collective noun. Collective noun में आपका जो नाम है वही अपने आप को आइडेंटिफाई करता है. कलेक्टिव, कलेक्ट करना मीन्स जब किसी चीज का ग्रुप उसमें होगा, सो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. व्हाट इज काउंटेबल? जैसे कि नाम से क्लियर है, काउंटेबल मीन्स वॉट एवर वी कैन काउंट. काउंटेबल नाउन्स आर द वर्ड्स विच रिप्रेजेंट्स द थिंग्स वी कैन काउंट. काउंटेबल नाउन वो वर्ड्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसी चीजों को जिनको हम काउंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल, कैट्स, कितनी बिल्लियां हैं? वी कैन काउंट 2 cats, 3 cats, 4 cats. Balls, how many balls? We can count. Coins, we can count. So these words called countable nouns, cats, balls, coins. क्योंकि ये जो वर्ड हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन चीजों को जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ना कम टू अनकाउंटेबल नाउन. जैसा काउंटेबल से पता लग रहा है कि काउंटेबल हैं, सेम वे अनकाउंटेबल बताता है कि वो काउंट नहीं किए जा सकते. अनकाउंटेबल नाउन्स आर द वर्ड्स विच रिप्रेजेंट्स द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट. ये वो वर्ड्स हैं जो रिप्रेजेंट ऐसी चीजों को करते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड. इन अदर वर्ड्स, दिस अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म. जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. इट्स अ सिंगुलर एंड प्लूरल आर सेम. सो नाउ आई विल रिपीट अगेन. काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जो कि उन वस्तुओं को, उन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. सो दैट इज काउंटेबल नाउन. एंड अनकाउंटेबल नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसी चीजों को जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. तो लाइक काउंटेबल नाउन के एग्जांपल है कैट्स, बॉल्स, कॉइन्स, एनीथिंग एल्स, बनानास. एंड अनकाउंटेबल के जो एग्जांपल्स होते हैं मिल्क, यू कैन नॉट काउंट. वाटर, you cannot count. Juice, you cannot count, etc. मीन्स ऐसी चीजें हैं जिनको आप काउंट ना कर सकें वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो वर्ड्स जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं. Abstract noun. Abstract noun are the words which denotes an idea, concept, feeling or state. Means abstract words वो nouns हैं, वो words हैं जो कि feeling को बताते हैं, feeling के बारे में बताएंगे. कोई idea है, कोई concept है या फिर कोई state. State means liquid, solid or something. इसके examples क्या होंगे अगर हम देखें? Beauty, an example, happiness. ये feeling है, so that is an abstract noun. Liquid, state है, abstract noun, etc. Means ऐसे सभी words, ऐसे वो सभी noun जो किसी भी particular thing, place, animal और anything etc.
It shows idea, concept, feeling or state. That is called abstract noun. Coming to the last but not the least is material noun, जो कि हमारा सिक्स्थ नाउन का टाइप है. Material noun are the names of raw material which is available in nature, existing in nature, and the important thing, these are used to make various things. वो चीज़ें जो कि रॉ मटेरियल्स नेचर में एक्सिस्ट करते हैं, अवेलेबल हैं, वो सभी मटेरियल नाउन में आते हैं. एंड ये सभी दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा मीन्स वो सभी मटेरियल जिनसे हम कोई भी दूसरी चीज़ बना सकते हैं, रॉ मटेरियल की फॉर्म में वो नेचर से अवेलेबल होता है हमें. दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन. नाउ मटेरियल नाउन में एक क्वेश्चन आता है कि वाटर मटेरियल नाउन है या नहीं. द आंसर इज नो. वाटर मटेरियल नाउन नहीं है. रीज़न, हम वाटर से वाटर की फॉर्म चेंज करते हैं, वाटर से कुछ भी नई चीज़ नहीं बनाते. दैट इज नॉट ए रॉ मटेरियल ऑल्सो. वाटर रॉ मटेरियल भी नहीं है. यस, खाना बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि वाटर की एक रॉ मटेरियल होता है खाना बनाने के लिए, बट ये सेम फॉर्म है जो हमें नेचर से जिस मिल रहा है उससे हम दूसरी चीज़ें नहीं बना सकते. तो इसलिए जो मटेरियल नाउन है उसमें आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, दीज आर मटेरियल नाउन. ओके, सो आज हमने सारे नाउन के जो टाइप्स हैं उन सबको डिटेल में पढ़ा. प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एंड मटेरियल नाउन. सो आज से नाउन की क्लास ओवर. सो टुमारो विल स्टार्ट प्रोनाउन एंड होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा एंड आपको समझ में भी आया होगा जो हम लोग समझना चाह रहे हैं, जो ग्रामर की बेसिक्स हम क्लियर करना चाह रहे हैं. सो if you love it, please like our video, comment on our video and share our video and subscribe our channel. Thank you. Good night.